खुश हुआ। चलो अब ठीक है। So in today's class we will be starting with a new chapter which is called exponent and power. So for exponent and power पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड क्या है। बहुत हेवी वर्ड लिखा हुआ है एक्सपोनेंट। Okay, 8 letters word and this is 5-letter word. तो क्या होता क्या है ये? So अगर इस word को if we try to understand in a layman's language, actually it is nothing. सच पूछो तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है. It is just a representation of if I multiply a number by itself many times. For example, अगर मैं किसी नंबर को से 2 है, ठीक है, तो अगर मैं इस 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, सो व्हाट आई हैव डन इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay, so this I will write as 2 raised to the power 5 और इसको अपन इस फॉर्म को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Exponential form. Here 2 is called the base. 2 जो है that is called the base and 5 is called the power. अगर मैं किसी और नंबर की बात करूं, किसी जनरल नंबर की बात करूं से a, and if I multiply that number a with itself say n times, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने a into a dot 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 up to n times किया है. So in that case what will happen up to n times if I will write. अब क्या होता क्या है कि this becomes very cumbersome. Imagine आपको 2 raised to the power 5 लिखना है, ठीक है, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 लिखना है, तो ठीक है, you guys are smart enough, आप इसको बोल लोगे कि सर मैं तो इसको ऐसे 32 भी तो लिख सकता था. लेकिन सपोज करो what if this 2 is multiplied 10 times. अगर इस 2 को मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तब आप क्या करोगे? तो या तो आप 2 रेज़ टू द पावर मतलब 2 को 10 टाइम्स कैलकुलेट करो, वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को लिखो, या आप क्या करो, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 10. दिस 2 रेज़ टू द पावर 10 इज नथिंग बट it is a representation of 2 multiplied by 2 up to, and this process is repeated up to 10 times. That is, it is nothing but 2 into 2 into 2 dot 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 up to 10 times. ठीक है? So this was just an introduction of this chapter, exponent and power. So exponents are nothing. Exponents are basically अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से n times multiply करते हो, then that multiplication can be written in the form of a raised to the power n. Here a is called the base, a is called the base and n is called the power, and overall this a raised to the power n is called the exponent form of representation. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, so as I said, if a number is multiplied by itself several times, then it can be written in the exponential form. If a is multiplied by a n times, so I can write it as a raised to the power n. Here a is called the base and n is called the exponent or power or index. n जो होता है उसको या तो अपन exponent या फिर आप power या तो आप index भी बोल सकते हो. And overall this is read as a और इसके ऊपर स्लाइटली ऊपर n जो है it is read as a raised to the power n. a raised to the power n. ठीक है, अब a और उसके ऊपर स्लाइटली ऊपर अगर n लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि a को a से n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. अगर a raised to the power 2 है that means a को a से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया. अब यहाँ देखो, जैसे ये 5 raised to the power 2 था, so this 5 raised to the power 2 meant that 5 multiplied by 5.
और यहाँ पे 5 is called the base, okay, and 2 is called the exponent or power. Exponent or power. 2 is called the exponent, or it is called the power, or it is also called the index. ठीक है. So this was the introduction about exponent and power. अब अपन आगे बढ़ते हैं. अब देखो पॉजिटिव इंटीग्रल नेक्स्ट इज, अब जैसे अपन ने क्या किया, ये तो अपन ने लिख लिया, ये तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन आपने तो फ्रैक्शन भी पढ़े थे. तो अगर मैं सपोज करो a अपॉन बी रेज टू द पावर n की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यानी कि अगर मान लो मैं 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a डॉट 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 अप टू n टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b डॉट 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 अप टू n टाइम्स. ठीक. अब यानी कि कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि सपोज इफ आई एम हैविंग 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3, सो दिस विल बी नथिंग बट 1 into 1 divided by 2 into 2 which will be equal to 1 upon 8. ठीक है. तो 1 upon 2 रेज टू द पावर 3 को यू कैन राइट एज 1 upon 8. अब ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. अब हम बात करते हैं निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की. तो सबसे पहले अगर हम निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात करते हैं, उससे पहले हम एक बात करते हैं, हालांकि वो अभी चलो समझ लो. सपोज करो x रेज टू द पावर -1 है, तो इसको आई विल राइट एज 1 अपॉन x. ठीक है. अगर कहीं पे पावर निगेटिव है, -1 है, तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं. अगर मान लो सिमिलरली अगर मान लो x टू द पावर -2 होता, तो इसको हम लिखते 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अगर कहीं पे मान लो x टू द पावर -3 होता, तो इसको अपन लिखते 1 अपॉन एक्स क्यूब. अगर कहीं पे x टू द पावर -5 होता, तो इसको हम लिखते 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5. ठीक है. अब हमारा जो डिस्कशन है, मान लो a अपॉन बी रेज टू द पावर -5 है, तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले इस माइनस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं. तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर x टू द पावर -1 है, तो इसको अपन क्या लिखते थे? 1 अपॉन एक्स लिखते थे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a अपॉन b. फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट दिस पावर 5. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a अपॉन b रेज टू द पावर 5. सो दिस विल बी b अपॉन a रेज टू द पावर 5. दिस विल बी सिंपली b अपॉन a रेज टू द पावर 5. तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी. पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि व्हाट वाज एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट इज नथिंग बट इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n times, then that number can be written as a raised to the power n, where a is called the base and n is called the exponent or power. Fine. And it is read as a raised to the power n. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर. जितना भारी ये टर्म लग रहा है, उतना ही आसान इसका मतलब है. कोई रेशनल नंबर जो भी होता है वो क्या होता है बेटा? p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है. तो p अपॉन क्यू रेज टू द पावर n, इट विल बी नथिंग बट p रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय q रेज टू द पावर n. सिमिलरली p अपॉन q रेज टू द पावर -n विल बी नथिंग बट q अपॉन p रेज टू द पावर n. तो इस तरीके से अपन ने तीन चीजें पढ़ी. एक पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पढ़ा, एक अपन ने नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पढ़ा, और सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ा. अब आगे बढ़ते हैं. चलो, ये आपके पास
दो चीजें हैं, ये आपको सॉल्व करनी है, इसकी वैल्यू मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3/7 raised to the power -2 and what will be the value of -4/9 raised to the power -3? You guys just have 2 minutes. Fine, start. पहला था 3/7 रेज टू द पावर -2। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, जहां पे भी पावर निगेटिव हो, सो आई विल राइट इट एज I will write it as 7/3 raised to the power 2. So it will become, अब 7/3 raised to the power 2 की वैल्यू निकालनी है, so it will become 7 into 7 divided by 3 into 3 which is equal to 49 divided by 9। यही आई गेस सबका आंसर आया था, है ना। मेरे को लगता नहीं है कि किसी का आंसर इससे कुछ भी डिफरेंट आया था। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है। ये वाला भी सॉल्व करना बहुत आसान है। 4/9 रेज टू द पावर -3। तो सबसे पहले इस -3 को हटाएंगे, तो ये पावर वाले -3 को हटाएंगे। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस वन, वी हैव टू रिमूव दिस पावर वाला -3। सो व्हाट आई विल राइट इट एज, आई विल राइट इट एज माइनस ऑफ 9/-4 divided by 3. So this will be nothing but 9 into 9 into 9 divided by -4 multiplied by -4 multiplied by -4। ठीक है। अब 9 into 9 into 9 कितना होता है बेटा, 729। ठीक है। अब 9 into 9 into 9 729 कैसा है, 9 into 9 होता है 81। 81 into 9 करोगे तो ये 9 और ये 72। So this will be 729। So this will be 729 divided by -4 into -4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं। -4 into -4, अपन ने पढ़ा था ना बच्चा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। So -4 into -4 will be equal to +16, but again here we are having +16 into -4, so this will become minus of 64। So it will become minus of 64। So my final expression will be 729 divided by -64। Now this is not a proper way of representation। हम लोगों ने कभी भी फ्रैक्शंस जो पढ़ा था, हम लोगों ने फाइनली जो फ्रैक्शन लिखा था उसको हम लोगों ने निगेटिव, डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं लिखा था। कन्वेंशनली हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। सो आई विल राइट दिस 729 अपॉन -64 को आई विल राइट इट एज -729 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, -729 divided by 64। This will be the correct answer of this क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों में से कई सब लोगों ने, ऑलमोस्ट सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जिनका 729 अपॉन -64 था, that also I have considered it as correct, but the better way of representation or the better way of writing will be 729 -729 upon 64। क्योंकि हम लोग कहीं पे भी डिनोमिनेटर को निगेटिव में लिख के नहीं छोड़ते। ठीक है, हम हमेशा उसको माइनस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज 2 एग्जांपल्स। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। कोई डाउट किसी को? क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर किया जाए तो ये चैप्टर एक क्लास में भी खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनीबॉडी? ओके, जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉज हैं। ठीक है, कुछ लॉज हैं। उन लॉज के बारे में, ये लॉज, ये जो 6 लॉज है ना बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको सब याद करवा दूंगा। जैसे देखो,
अपन एक एक लॉ को पढ़ेंगे, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो टू है, जो यहाँ पे मैंने टू लिखा है, क्या ये टू एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? Say yes or no. Is Yes, two. sir. Okay. So everybody is agreeing with the fact that 2 is a rational number जिसका denominator 1 है. ठीक है? तो what I am doing is, in order to explain you the results, ताकि आपको इन रिजल्ट्स को मेमोराइज ना करना पड़े, मैं क्या कर रहा हूं, मैं a upon b की जगह I will take 2. Just to explain you, I will take a upon b is equal to 2. क्योंकि क्या होगा, अगर मैं ऐसे a upon b के टर्म्स में बोलता जाऊंगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आज नहीं तो कल कंफ्यूज हो जाओगे, परसों कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज तो होना ही है, ये बात फैक्ट है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, a अपॉन b की जगह अपन 2 लेंगे, m की जगह हम लोग मान लो अपन ले लेते हैं 3, एंड n की जगह अपन ले लेते हैं, अगेन वी विल टेक एज, चलो m की जगह वी विल टेक 4 और n की जगह हम लोग लेंगे 3। ठीक है, ये हमारा जनरल पर्टिकुलर फॉर्म है, और इसके बाद अपन वी विल गो टू द जनरल फॉर्म। देखो पहला क्या था, a अपॉन b की जगह अपन ने 2 लिया है, so this is 2 raised to the power 4 multiplied by 2 raised to the power 3. Now this is nothing but, this will be 2 raised to the power 4 plus 3, which is equal to 2 raised to the power 7. किया क्या आपने बेटा, आपने किया क्या, ध्यान से समझो। 2 raised to the power 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, and this is multiplied by 2 raised to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2। तो टोटल आपने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7। सो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 3 is equal to 2 raised to the power 7। समझ में आया? यही इन लोगों ने एक लॉ के फॉर्म में लिख दिया, a upon b raised to the power m multiplied by a upon b raised to the power n is equal to a upon b raised to the power m plus n। इसको इन लोगों ने लॉ के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, द सेम थिंग इज, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई, आपने क्या किया, आपने 2 रेज टू द पावर 4 किया मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 किया, और इसको आपने जब आपने देखा इसको, तो आपको क्या मिला कि दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर m into n। ठीक है, आई मीन 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर n, which is equal to 2 raised to the power m plus n, which is equal to 2 raised to the power 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला जो लॉ होता है वो हमने समझा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। लॉ नंबर 2 इज a upon b raised to the power m divided by a upon b raised to the power n is equal to a upon b raised to the power m minus n। अब हमने क्या किया था, m को अपन ने 4 माना था, n को अपन ने 2 माना था, 3 माना था। So this will be, अब देखो 2 raised to the power 4 divided by 2 raised to the power 3 था, तो अब अपन क्या करेंगे, 2 raised to the power 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2, और 2 raised to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2। अब अपन क्या करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो हमने सीखा हुआ बेटा कि हम कॉमन टर्म्स को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 1। फाइनली आपके पास बचा, फाइनली आपके पास बचा 2 रेज टू द पावर 1, दैट इज आपके पास क्या बचा, 2 रेज टू द पावर 4 minus 3, which is nothing but 2 raised to the power 1, or it is nothing but 2।
ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि a अपॉन b रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज टू द, अपन ने क्या पढ़ा, a अपॉन b रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज टू द पावर n इज नथिंग बट a अपॉन b रेज टू द पावर m माइनस n। ये अपन ने अभी पढ़ा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे वाले लॉ की तरफ चलते हैं। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? पूछो यार, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस लिख रहे सौम्य। हाँ सौम्य, क्या डाउट है बेटा? यार आप लोग फिर बोलना बंद कर दियो आप लोग। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज a upon b raised to the power m raised to the power n। now first of all let us understand कि ये लिखा क्या है। देखो, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि ये लिखा क्या है, तो फिर ये जो है आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई कभी कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं आएगा। समझने की कोशिश करते हैं ये लिखा क्या है। ये लिखा है 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4। मतलब ये कि 2 रेज टू द पावर 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मल्टीप्लाइड 2 raised to the power 3 with 2 raised to the power 3, again with 2 raised to the power 3, and again with 2 raised to the power 3. So what you have done is you have multiplied 2 raised to the power 3 4 times। और जब अपन ने सीखा था कि अगर अपन सेम नंबर को अगर अपन बार बार मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट, जब बेस से सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं हमारी, ऐड हो जाती हैं। सो दिस विल बी 2 raised to the power 3 plus 3 is 9, 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 is 12। So I can write 2 raised to the power 3 whole raised to the power 4 as nothing but 2 raised to the power 12। अब इसको लिखने के लिए ये जो 12 आपका कहां से है, this 12 is nothing but product of this 3 and 4। So 2 raised to the power 3 whole raised to the power 4 will be equal to 12, and this will also be equal to 2 raised to the power 4 whole raised to the power 3। अगर 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 3 करेंगे तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 2 रेज टू द पावर 12 ही आएगा। 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 4 किया तो भी जो हमारा रिजल्ट आया वो 12 ही आया। 2 रेज टू द पावर 12 ही आया। कैसे आया ये 12? ये 12 आया 4 इंटू 3 करने से। 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 सेम होता है। और इसका लॉजिक क्या है, दिस नंबर इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 3 whole raised to the power 4 is nothing but 2 raised to the power 3 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया। इसको एक बार किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको भी आपने फिर से 2 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई किया। और जब आप बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। सो दिस विल बी नथिंग बट 2 raised to the power 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 is 12। So this was the explanation of part 3। Next part is a upon b multiplied by c upon d whole raised to the power n। this is nothing but ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। अगर एक नंबर है, इंटीजर है 2 और एक दूसरा इंटीजर है मान लो 5, 2 into 5 raised to the power 3 is nothing but 2 into 3 multiplied by 5 into 3। कैसे आया सर, कैसे कर दिया सर आपने? ऐसे अपन क्या करेंगे, अपन LHS और RHS को सेपरेटली इक्वेट करेंगे, फिर देखते हैं अगर हमारा जो रिजल्ट आया वो सेम आया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है। 2 into 5 कितना होता है, 10। 10 raised to the power 3 is nothing but 1000। तो मेरा जो LHS है, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1000 आया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं।
2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 2 रेज टू द पावर 3 इज नथिंग बट 8 एंड 5 रेज टू द पावर 3 इज नथिंग बट 125. कैसे है सर 125? 5 इंटू 5 करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज 125. 5 इंटू 5 होता है 25 और 25 इंटू 5 होता है 125. So the result is 8 into 125, which is nothing but 1000. Which is nothing but 1000. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए. दैट मीन्स अगर कोई नंबर आपका 2 into 5 raised to the power 3 है तो that you can write as 2 into 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 3. Similarly, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2/5 raised to the power 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power 3. ठीक है. So this was my rule number 4. Rule number 5 जो है वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं. Rule number 5 था बेटा x raised to the power n minus n is equal to 1 upon x raised to the power n. Rule number 5 was x raised to the power minus n is nothing but 1 upon x raised to the power n. And finally, the last rule of this exponents is a upon b raised to the power 0 is equal to 1. किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. 100 to the power 0 is 1. 5 to the power 0 is 1. 600 to the power 0 is 1. 999,999,999 dot 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 up to 9, ये पता नहीं कितने टाइम्स है, to the power 0 is also equal to 1. So any number raised to the power 0 is equal to 1. This was my rule number 6. ठीक है. तो इस तरीके से ये 6 रूल्स हैं that we have studied. So आप लोगों ने क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे. just let us discuss the questions. अब मान लो जैसे क्या हुआ कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैड ए फाइट विथ माय फ्रेंड एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग. मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है कि मैं क्वेश्चंस को कैसे करूंगा. मैं सारी चीजें भूल गया लेकिन आई कांट फेल इन द एग्जाम. So what I will do is I'll try to use my basics. Even if you are forgetting the formula, even if you are forgetting the laws, then also you can solve the question by using this thing. The basic mind that you have, that God has given you. ठीक है. कैसे करेंगे बेटा समझने की कोशिश करो. जैसा कि मैंने आपको बताया था, this minus 2 upon 3 raised to the power 6 is nothing but minus 2 upon 3 multiplied by minus 2 upon 3 6 times, or this is minus 2 upon 3 multiplied by minus 2 upon 3 2 times. अब डिवीजन के केस में अपन क्या करते थे? अपन कैंसिल करते थे टर्म्स. तो ऊपर है 6 टर्म्स, नीचे है 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स नीचे वाले 2 टर्म्स ऊपर वाले 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या हमारे पास? 4 टर्म्स बचेंगे. सो फाइनली माय आंसर विल बी minus 2 upon 3 raised to the power 6 minus 2, which is equal to minus 2 upon 3 raised to the power 4. अब इसको या तो ऐसे छोड़ दो या तो इसको सिंप्लीफाई कर दो. दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो दिस विल बी minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2 raised to the power divided by 3 into 3 into 3 into 3, which is equal to 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, minus into minus is plus, plus into minus is minus, minus into minus is plus. So finally it will be 16 divided by 81. ठीक है. जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, दिस स्माइली फॉर देम. और जिनका आंसर नहीं आया, दिस वन इज फॉर यू, बट यू हैव टू चेक कि आपका आंसर क्यों नहीं आया. You will have to check why your answer is not there. ठीक है. अगला करते हैं. अब देखो अगले क्वेश्चन में एक ट्रिक है. ट्रिक यहाँ पे ये है बेटा कि यहाँ पे आपको 5/2 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 5/2 दिख रहा है. बहुत अच्छी बात है सर. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है,
वेरी गुड सर। तो हमने क्या सीखा था सर? हमने ये सीखा था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं और जब बेसिस सेम होता है तो अपन क्या करते हैं, पावर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो 5/2 है ना, इसके साथ एक माइनस का साइन और जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा। दिस -5/2 रेज टू द पावर 3 इज नथिंग बट, अब देखो एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि a इंटू बी रेज टू द पावर m इज नथिंग बट a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर m। अभी ये बताया था ना आपको, पिछला 10 का एग्जांपल लेके बताया था कि 10 इज नथिंग बट 5 इंटू 2, so 10 raised to the power 3 is nothing but 5 raised to the power 3 multiplied by 2 raised to the power 3। उसके बाद फिर चेक किया था, ये आया था 125, ये आया था 8, और 125 इंटू 8 आया था 1000। ठीक है, तो अब जो है ना ये बेटा, ये जो -5/2 है, दिस इज नथिंग बट -1 इंटू 5/2। बोलो हाँ कि ना? चलो वेरी गुड। सो दिस इज -1 इंटू 5/2। अब अपन क्या करेंगे, इसको इस वाले आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर देंगे। सो दिस इज नथिंग बट -1 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 रेज टू द पावर 3। अब ये जो -1 टू द पावर 3 है ना, इसको एज इट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 टू द पावर 3 इज nothing but -1. So my expression will be, -1 into 5/2 raised to the power 3 multiplied by 5/2 raised to the power -4। ठीक है, जो मेरा एक्सप्रेशन फाइनली जो सॉल्व होकर आया बच्चों, वो आया -1 into 5/2 raised to the power 3 multiplied by 5/2 raised to the power -4। अब अपन इसको क्या करेंगे, ये -1 तो -1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। एंड 3 - 4 कितना होता है भाई? 3 - 4 होता है -1। सो दिस विल बी -1 इंटू 5/2 रेज टू द पावर -1। अब ये वाला जो -1 और ये वाला जो -1 है, ये दोनों अलग अलग है। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके 5/2 आंसर लिख के मत आ जाना, 0 मिलेगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, ये मत करना, कोई किसी के दिमाग में ये क्रांतिकारी विचार तो नहीं आया था कि ओ बेटे ये यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, -1 को -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ये रिड्यूस होके +1 हो जाएगा। ऐसा विचार किसी के दिमाग में आया हो तो प्लीज उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, -1 तो यहाँ पे एज इट इज लिखा रहने देंगे, और ये जो 5/2 रेज टू द पावर -1 है, दिस विल बी नथिंग बट 2/5। कैसे आया सर? अभी जो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी वैसे अभी आइडेंटिटी दिखा देता हूं। सो दिस विल बी -1 इंटू 2/5, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी -2/5। ये -2/5 किस किस का आंसर आया था देखूं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर -2/5 सौम्यदित्य, पार्ट 2 का आंसर -2/5 अनन्या, पार्ट 2 का आंसर -2/5 निष्ठा। वेरी गुड। पार्ट 2 का आंसर, ओए ये क्या लिखा है, ये 4:07 पे पता नहीं क्या मैसेज किया, छोड़ो। ठीक है, सौम्यदित्य, निष्ठा, अनन्या, आप तीनों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो whenever I will meet you next time, जब भी मैं मिलता हूं आप लोगों से, you guys deserve a chocolate from my side। ठीक है, आप लोगों को एक चॉकलेट मिलता है उससे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही दोगे। मुझे लगता नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई सही दे पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स भाई, बाकी हो आंसर दे दो भैया, कुछ तो दे दो, सही गलत कुछ तो बता दो। चलो पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 कैसे करेंगे, देखो सर, पार्ट नंबर 3 करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अभी अपन ने सीखा था a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज नथिंग बट a रेज टू द पावर mn।
ठीक है, तो 3/2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर -2 विल बी नथिंग बट 3/2 रेज टू द पावर -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, -6 पावर है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इतना मत छोड़ो, इसको लिख सकते हो 2/3 रेज टू द पावर 6। अब इसको चाहो तो आगे सिंप्लीफाई करो, इसको चाहो तो वहीं पे छोड़ दो। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेज टू द पावर 6 इज नथिंग बट, देखो मुझे तो याद है, आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? आपको ये पता है कि 2 रेज टू द पावर 6 इज 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 1, और 2 रेज टू द पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो 32 होती है। 32 into 2 is 64, so this will be 64, or 3 raised to the power 6 is nothing but 729, so your answer should be 64/729। देख ले किसी ने आंसर सही दिया है क्या? 64, 32, यस, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बोलते नहीं है लेकिन आप लोग रिप्लाई करते हैं, मोगम्बो खुश हुआ। चलो नेक्स्ट, पार्ट नंबर 4। हाई, पार्ट नंबर 4 इज, क्या है पार्ट नंबर 4 सर? देखो 8/81 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 27/4 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इसको सॉल्व किया कैसे जाए, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है। हमने जो पढ़ा था 5 into 2 raised to the power 3 is nothing but 5 raised to the power 3 multiplied by 2 raised to the power 3। इंटीजर्स के केस में, रैशनल नंबर के केस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी रैशनल नंबर्स की ही बात हो रही है, और 5 और 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सर, कैसे यूटिलाइज करूंगा सर? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, आपको आ रहा हो तो बताओ क्या करूंगा मैं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 8/81 लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 27/4 लिखूंगा एंड होल रेज टू द पावर 3 लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, क्योंकि 27 into 27 तो आई नो इट इज 729, लेकिन 729 into 27 मेरे को नहीं पता। लेकिन अब जब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया ना, मेरा काम आधा हो गया। कैसे आधा हो गया? देखो, जय श्री राम, इसको मैंने कट कर दिया। सो आई नो दैट 27 into 3 is equal to 81, ये मुझे पता है, तो मैंने इसको कट कर दिया। मुझे एक और चीज पता है सर, क्या पता है? 4 2s are 8, so finally my expression will be 2/3 raised to the power 3 which is equal to 8/27। तो इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन था ना, इसका देखो कितना छोटा सा आंसर आया है, कितना नानू आंसर आया है इसका, 8/27। दिस वाज द क्वेश्चन, और इसका इतना छोटा सा आंसर आया है। किसी को कोई डाउट